Hi guys, welcome back to the another video of UPSC or Nothing. Today we are going to discuss current affairs for 10th of August 2020. So as always, before wasting any further time, let's jump into the topics for the day, which are Handloom Sector, Monetary Policy Committee, Priority Sector Lending, UNHRC, SFTS Infection, Grand Maestro, PMFBY, India Water Resources Information System, Korvai Weaving, and Kisan Rail. So our first question of the day is, which of the following statements are correct about handloom sector in India? Our statements are, it is the second largest source of employment to people after agriculture. Second, over 70% of handloom weavers and allied workers are women. Our options are one only, two only, both one and two, and none of the above. टेक अ पॉज, थिंक अबाउट इट, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे. ओके, अगर हम अपना पहला स्टेटमेंट देखें तो इट इज़ एब्सोल्युटली राइट. ओके, इट इज़ एब्सोल्युटली राइट that it is the second largest source of employment after agriculture. Second says that कि 70% से ज़्यादा जो weavers और allied workers है वो women है. This is also correct. तो हमारा correct option C हो जाता है, जो कि both 1 and 2 है. अब हम लोग ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली अपन लोगों ने नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया 7th of August को, है ना, टू एक्नॉलेज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर नेशनल हैंडलूम वीवर्स. ठीक है, अब 7th of August को ही हम लोग नेशनल हैंडलूम डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन को 1905 ईयर में हम लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया था. तो स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च ऑन 7th of August 1905. दैट्स वाई वी celebrate it as National Handloom Day in India. Okay, another interesting fact was that in 2015 we celebrated our first National Handloom Day in Chennai. ठीक है, and this year we have celebrated it for the sixth time. ठीक है, moving on our next question. Which of the following statements are correct about Monetary Policy Committee? Recently, Monetary Policy Committee has published a report for the month of August. Now, what is that report? Monetary policy और fiscal policy? तो हम वो देखते हैं. पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इट इज द स्टैट्यूटरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी. सेकंड, the MP report, which is monetary policy report, is published by the Monetary Policy Committee. Third, the Deputy Governor of RBI is ex officio chairman of the MPC. Our options are 1 only, 1 and 2 only, C 2 and 3 only, and D all of the above. पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, that it is the statutory body under RBI Act 1934. Second is also correct. The monetary policy report is published by this committee, and the fiscal policy is released by the central government. Okay. मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा आरबीआई की जो ये एमपीसी कमेटी है वो करती है, और फिजिकल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है. थर्ड सेज दैट द डेप्यूटी गवर्नर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. नो, इट इज द गवर्नर ऑफ द आरबीआई हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. ओके, अनदर थिंग वी शुड नो दैट देयर इज रेपो रेट, देन देयर इज रिवर्स रेपो रेट, है ना. रेपो रेट वो होता है इन विच द आरबीआई, विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, lends the money at that rate, and in reverse repo rate RBI borrows the money at that rate. करंट जो रेपो रेट है वो 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, जो कि अभी अनचेंज हुआ है, इसको कहीं भी चेंज नहीं किया गया इवन ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन. ठीक है, फिर एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, एक कैश रिजर्व रेशियो होता है. दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम. आई वांट यू ऑल गाइस टू कमेंट ऑन द बिलो सेक्शन कि इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है. ठीक है, अनदर क्वेश्चन, consider the following sectors as included under the priority sector lending framework. Options are agriculture, SMA, MSME, education, renewable energy, and startups. Or options are A 1 2 3, B 1 2 4 and 5, C 1 2 3 and 5, and D 1 2 3 4 5. Take a pause, think about it. Okay, तो एग्रीकल्चर हमारा इंक्लूडेड है, यस. एमएसएमई भी इंक्लूडेड है, एजुकेशन भी इंक्लूडेड है, रिन्यूएबल एनर्जी भी इंक्लूडेड है, एंड ये स्टार्टअप्स भी इंक्लूडेड है. रिसेंटली हम ये क्वेश्चन इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली इकोनॉमिक मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं और उसमें स्टार्टअप्स को इंक्लूड किया गया है. बेसिकली ये एक नया सेक्टर है पीएसएल फ्रेमवर्क नॉर्म्स के अंडर. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी 1 2 3 4 5. और इसके बारे में चीज़ें देख लेते हैं. पीएसएल फ्रेमवर्क वॉज फर्स्ट डिफाइंड इन 1972 बाई डॉक्टर के.एस. कृष्णा स्वामी कमिटी. देन इसके लिए टारगेट रखा गया था 33.33%, जो कि बैंक जो पूरा क्रेडिट देने का जो एक वो होता है, जो बजट होता है, उसमें से 33.33% बैंक जो ये प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग फ्रेमवर्क के अंडर जो सेक्टर्स हैं उनमें देगा.
विच वॉज लेटर इंक्रीज टू 40% एंड करेंटली 40% ही है प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए जो शेयर है. देन जो हमारे सेक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं, विच इज़ एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स में हमारे वर्नेबल कम्युनिटीज आ जाती हैं. और स्टार्टअप सेक्टर जो रिसेंटली लेटेस्ट है इंक्लूड हुआ है जो इस लिस्ट में. देन कई बार क्या होता था कि बैंक्स इन जो पीएसएल के जो हमारा जो 40% का जो टारगेट है उसको अभी मीट नहीं कर पाता था, डिफॉल्ट हो जाता था. तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए पीएसएल सर्टिफिकेट्स लॉन्च हुए थे 2016 में, इन विच दिस पीएसएल सर्टिफिकेट्स कैन बी ट्रेडेड इन ऑर्डर टू मीट द टारगेट ऑफ द बैंक्स, है ना. उन टारगेट्स को मीट करने के लिए ये सर्टिफिकेट्स भी इशू होने स्टार्ट हो गए थे. ओके, moving on to our next question of the day, which of the following statements are correct about UNHRC? Recently what happened is that US has asked the members of the United Nations to vote against the Cuba's plea of joining the UNHRC. ठीक है, और ये यूएस इसलिए बोल रहा है क्योंकि यूएस ने एक इल्ज़ाम लगाया है, कह लीजिए एक एक्यूज़ किया है क्यूबा को कि ह्यूमैनिटेरियन जो मिशंस होते हैं उसके थ्रू क्यूबा अपने जो डॉक्टर्स है वो स्मगल कर रहा है, वो है ना, इस चीज़ की वजह से. एज वी ऑल नो दैट क्यूबा हैज़ गॉट अ वेरी गुड हेल्थ केयर सिस्टम. ठीक है, स्टेटमेंट्स में आते हैं. यूएनएचआरसी के ऊपर बात हो रही थी. इट हैज़ 45 मेंबर्स विच आर इलेक्टेड बाई डायरेक्ट एंड सीक्रेट बैलेट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. Second, the US withdrew from UNHRC in 2018. Our options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, and none of the above. पर पहले स्टेटमेंट में 4 चीज़ें देखने वाली बात है. पहला है कि क्या इसमें 45 मेंबर्स हैं. दूसरा, क्या ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं. क्या ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू इलेक्ट होते हैं. और क्या ये 3 साल के लिए होते हैं. तो इसमें क्या ये 45 मेंबर्स हैं, ये गलत है. करेंटली दे आर 47 मेंबर्स. डायरेक्टली येस, सीक्रेट बैलेट के थ्रू येस, पीरियड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years येस. तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 40 एक चीज़ गलत है कि 45 बट इट इज़ 47. सेकंड, द यूएस विड्रू फ्रॉम यूएनएचआरसी इन 2018. करेक्ट, विड्रू कर लिया था 2018 में यूएस में, कि ये बोल के कि यूएनएचआरसी बहुत ही बायस्ड है. ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है विच इज़ ओनली ऑप्शन बी. ठीक है. अनदर थिंग वी शुड नो दैट द जब भी किसी मेंबर को इसमें इलेक्ट होना होता है तो उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है विच इज़ मोर देन 50% ऑफ द वोट्स, है ना. Another thing is that UNHRC works to promote the human rights and to protect human rights in the world. Okay. So, इसलिए हम UNHRC के बारे में पढ़ रहे हैं. Next question, which of the following statements are correct about SFTS infection recently seen in news? अभी recently चाइना में ये इन्फेक्शन देखा गया है, इसमें से कुछ लोगों की मौत भी हो गई है. कोरोना के बाद अब हमारा नया इन्फेक्शन आ गया है, SFTS इन्फेक्शन. उसके पहले हंता वायरस आया था. God knows what's going to happen. Anyways, our statements are: the virus was first identified in China. Second, it is transmitted to humans through mosquito bites. Third, there is no vaccine to treat the disease yet. Our options are 1 only, 2 only, 2 and 3 only, and 1 and 3 only. Take a pause, think about it, then we'll come into the statements. Okay. पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन चाइना. यस, करीबन 1990s में, आई गेस नहीं, 2009 के करीब ये चाइना में सबसे पहले आया था. सेकेंड, इट इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू मॉस्किटो बाइट्स. दिस इज रॉन्ग. ये टिक बाइट्स के थ्रू आता है. ठीक है, जो एनिमल्स में टिक्स होते हैं, टिक्स, उसके थ्रू. अनदर थिंग, देयर इज नो वैक्सीन टू ट्रीट द डिजीज येट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो हमारे जो सही ऑप्शंस हैं वो हैं 1 और 3. जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी. और चीज़ें देख लेते हैं इस वायरस के बारे में. इट इज़ कॉज्ड बाय SFTS वायरस. SFTS का जो फुल फॉर्म है वो है सीवियर फीवर विथ थ्रोम्बोसिटोपिनिया सिंड्रोम. ठीक है, जो ये वायरस है वो बोनिया वायरस फैमिली का है. देन इट इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस फ्रॉम टिक बाइट्स, जो मैंने बता दिया. जो टिक्स होते हैं वो डियर, शीप, कैटल, गोट्स, तो इनके जो ओनर्स होते हैं उनको ये बीमारी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं. अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन एक वैक्सीन है विच इज़ राइबोवायरिन. इट इज़ नोन टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट दिस वायरस, दिस डिजीज. ओके, इसका जो फैटेलिटी रेट है वो 13 to 30% है. एंड दिस डिजीज इज ऑल्सो लिस्टेड अमंग द टॉप 10 प्रायोरिटी डिजीजेस ब्लूप्रिंट ऑफ WHO, क्योंकि इसका हाई स्प्रेडिंग रेट है और हाई फैटेलिटी रेट है ना. इसलिए ये उन 10 प्रायोरिटी डिजीजेस की लिस्ट में इंक्लूडेड है WHO के. ये कुछ चीज़ें थी इस वायरस के बारे में. आगे देखते हैं क्या होता है इस वायरस का. क्या ये पोस्ट कोरोना के बाद कहीं इसी का तो नंबर नहीं है. एनीवेज, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन,
Recently, National Gallery of Modern Art, New Delhi has organized a virtual tour titled The Great Maestro to commemorate 150th birth anniversary of which of the following personalities? Our options are Rabindranath Tagore, Abhinavanath Tagore, Bal Gangadhar Tilak, or Lala Lajpat Rai. Take a guess, then we will discuss it. Okay, our correct option in this is Abhinavanath Tagore. अभी रिसेंटली इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी की वजह से ये एक वर्चुअल टूर रखा गया. हमको पता होना चाहिए दैट Abhinavanath Tagore is the nephew of Rabindranath Tagore. Another thing we should know that he was a very well-known painter in the history of India in the 19th century, and he was a very prominent personality of the Bengal school of painting, है ना. ये इनसे एसोसिएटेड है, इसके काइंड ऑफ मान लीजिए फेस ही थे. अनदर थिंग हमको पता होना चाहिए जो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसको रिनाइसेंस स्कूल भी बोलते हैं या रिवाइवलिस्ट स्कूल भी बोलते हैं पेंटिंग के उसमें, क्योंकि दे हैव डन अवे विद द ऑयल पेंटिंग एंड द यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग. ये अगेंस्ट थे इन सब चीज़ों के, है ना. इस वजह से अभिनव टैगोर उस समय बहुत फोरफ्रंट में थे इस स्कूल ऑफ पेंटिंग के. ठीक है. अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? Our statements are, it was launched in 2015 and is implemented by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Second, the prescribed premium is 2% to be paid by farmers for the all Kharif crops and 1.5% for all Rabi crops. Third, it is a central sector scheme. Our options are 1 only, 2 only, 2 and 3 only, and D 1 and 3 only. Take a pause, think about it, then we will discuss it. अगर हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं तो इसमें बोलता है कि it was launched in 2015. This is wrong. It was launched in 2016. Whether it is implemented by Ministry of Agriculture, yes, this part is correct, but this part is wrong. So our ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है. Second says that जो प्रीमियम पे करते हैं जो फार्मर्स हैं वो खारिफ क्रॉप्स के लिए 2% है और राबी क्रॉप्स के लिए 1.5% है. It is absolutely right. Third says that it is a central sector scheme. This is wrong. It is a centrally sponsored scheme. Okay, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है. तो हमारा सिर्फ सेकंड ऑप्शन है जो सही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है बी विच इज 2 ओनली. और चीज़ें देख लेते हैं इसके बारे में, दैट इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. ये पढ़ लिया, 2016 में लॉन्च हुआ था, ये भी पढ़ लिया. जो प्रीमियम है वो खारिफ के लिए 2% है, राबी के लिए 1.5% है, एंड जो कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनके लिए 5% है. देन इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रीहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस कवर फ्रॉम प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट. कई बार यहाँ पे भी गेम हो सकता है कि पोस्ट सोइंग से पोस्ट हार्वेस्ट या पोस्ट सोइंग से प्री हार्वेस्ट, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, ये प्री सोइंग से पोस्ट हार्वेस्ट तक अगेंस्ट नॉन प्रिवेंटिव नेचुरल रिस्क, है ना. इसलिए अनदर थिंग दैट इट इज कंपल्सरी फॉर लोनी फार्मर्स अवेलिंग क्रॉप लोन एंड किसान क्रेडिट कार्ड. मतलब जिन जिन फार्मर्स ने क्रॉप लोन्स लिए बैंक से और जिन्होंने ये किसान क्रेडिट कार्ड वाली फैसिलिटी अवेल की है उनके लिए ये स्कीम कंपलसरी है. बट इट इज़ वॉलेंटरी फॉर अनदर फार्मर्स जिन्होंने ऐसा कुछ भी लोन वोन बैंक से नहीं लिया है. ठीक है, ये था PMFBY के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट इंडिया वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम? Our statements are, it is a web portal containing information related to water resources through dashboards. Second, it is launched by Ministry of Electronics and Information Technology. Our options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, and none of the above. Take a pause, think about it, then we will discuss it. Okay, अगर अपना पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या ये वेब पोर्टल है, करेक्ट. जो इन्फॉर्मेशन देता है वाटर रिसोर्सेज थ्रू डैशबोर्ड्स, एब्सोल्युटली राइट. सेकंड, इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. दिस इज रॉन्ग. इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो लॉन्च अंडर नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट. ऑलराइट. इसमें क्या करता है, इस डैशबोर्ड में आपको सारी वाटर रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन मिलेगी, वेदर इट इज़ ग्राउंड लेवल वाटर, इट इज़ अंडरग्राउंड लेवल वाटर, वेदर इट इज़ ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज, रिवर डिस्चार्ज, कोई भी जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं अपने कंट्री के, उस सब की इंफॉर्मेशन आपको इस पोर्टल में मिल जाएगी. ठीक है, और ये नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अंडर में लॉन्च हुआ है. इसका एक नया वर्जन लॉन्च हुआ है, इसलिए रिसेंट न्यूज़ में था. ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. कोरवाई इज एन एंशियंट एंड कॉम्प्लेक्स टेक्निक ऑफ वीविंग प्रैक्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? Kerala, Karnataka, Tamil Nadu or Andhra Pradesh? Think about it, then answer it. Okay, the correct option is Tamil Nadu. ये जो कोरवाई है
ये एक बहुत ही फेमस और ट्रेडिशनल टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि साड़ी जो होती है उसको वीव किया जाता है, एंड साड़ी में क्या होता है, इसका जो होल बॉडी है उसको सेपरेट वीव होता है उस लूम में, और जो उसका बॉर्डर है वो अलग वीव होता है, और उन दोनों को बार में अटैच किया जाता है। ये इस चीज़ की खासियत है। एक ही बार में पूरी साड़ी नहीं होती है, दोनों के अलग अलग पार्ट होते हैं, बाद में दोनों को अटैच किया जाता है। उसको कोरवाई बोलते हैं। ओके, सो आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, रिसेंटली फर्स्ट किसान रेल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन विच ऑफ दीज टू स्टेट्स? अभी दो स्टेट्स के बीच में किसान रेल है, वो लॉन्च हुई है, तो हमें बताना है कि वो कौन सी स्टेट्स हैं। और ऑप्शन आर यूपी एंड बिहार, बिहार एंड महाराष्ट्र, यूपी एंड वेस्ट बंगाल, हिमाचल एंड बिहार। थिंक अबाउट इट। आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी, बिहार एंड महाराष्ट्र। इसके बीच में अभी अपनी इंडिया की पहली किसान रेल लॉन्च हुई है। ये अपने यूनियन बजट में प्रपोज हुई थी। यूनियन बजट है जो आपका 2019 से 2020 वाला। इसमें क्या होता है कि इसमें कोल्ड स्टोरेज कंटेनर्स हैं जो कि नॉन पेरिशेबल आइटम्स लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा स्टेट्स के बीच में। इसकी वजह से क्या होगा कि ये ख़राब भी नहीं होंगे जल्दी, और जल्दी ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन के लिए। एंड इट इज़ टू इंक्रीज द फार्मर इनकम। फार्मर इनकम को इंक्रीज करने के लिए ये नया एक जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का वो लॉन्च हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज news, and I like you all to please subscribe and share the video as much as possible. Thank you guys. I will meet you guys in next video. Okay.